a very logical day to all of you. So, a new week begins, a new day is there, and every new day, every new week, let's make a new promise that yes, we need to increase speed in reading and we need to read at least one more article. ठीक है, जितनी भी आप रीडिंग करते हो उससे एक आर्टिकल ज्यादा आज पढ़ लेना या इस वीक पढ़ लेना, इतना प्रॉमिस आप खुद से कर लें, राइट? तो इफ यू आर रीडिंग 5 articles a day, try reading 6. Even if you read a small article, okay, it's okay, but at least it is one article that you're reading. Say about 250 300 words, आप इतनी भी कोशिश कर लो तो वो अच्छा रहता है. आज की डिस्कशन में देखते हैं क्या है. मंडे है तो मंडे आइडिया भी रहेगी. इंडियन एक्सप्रेस मार्च 24 में आइडिया है हमारे पास क्या. That is migration after COVID. So it's 5 years now. ठीक है, मार्च में हुआ था, आपको पता होगा 2022 के आसपास, मार्च 22 के आसपास लॉकडाउन जैसे लगा था, एक घोषित किया था. अब उसके बाद यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ माइग्रेशन होता ही रहा विद इन द स्टेट्स, राइट? सो लेट अस टेक लुक एट नाउ व्हाट इज द सिनेरियो नाउ, राइट? So what after COVID? So migration after COVID, let's see what we have here in the reading part. Simultaneously, I will be coming up with the main idea and simultaneously we are going to discuss the word and the meanings of the words also. ठीक है, क्योंकि ये लेंदी आर्टिकल होता है और जिन्होंने पहले मंडे आइडिया नहीं अटेंड किया है, नहीं सुना है, तो वो देखेंगे कि ये एक लेंदी आर्टिकल होता है, राइट? So we take the main ideas and we take the word and the discussion of the word simultaneously. Okay? So let's go about it. So COVID-19 pandemic severely disrupted migration, halting mobility and worsening migrant vulnerabilities. Vulnerabilities का मतलब होता है weaknesses. तो जितने migrant weak थे या उनकी जो जो weaknesses थी वो और exacerbate हो गई और worsen हो गई. ठीक है, डिसरप्टेड का मतलब होता है ब्रेक कर लेना. रप्ट हमने उस दिन किया था वर्ड, दैट मीन्स टू ब्रेक. तो डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस क्रिएट होना. तो कौन सी चीज जो बीच में रुक गई थी, कट गई थी, राइट? सो कोविड-19 था तो पूरी जिंदगी ऐसे थम गई थी, या तो वो नॉन, लाइक इट वाज नॉट द नॉर्मल काइंड ऑफ, जस्ट तभी उस टाइम पे बोलते थे इट वाज अ न्यू नॉर्मल. ठीक है, तो कई सारी चीजें लीक से हट के होने लगी थी. मोबिलिटी halt any stop and worsening the migrant vulnerability. So this was the effect of the COVID-19 pandemic. So we reflect on the significant shifts in India's migration landscape 5 years after the pandemic and its impact on individuals, economy, and society. So let us understand what the shift was and what the impact was, right? So now what we have is that there was a disruption. ठीक है, 5 साल की बात अगर हम अब लेते हैं, ठीक है, तो 5 साल में क्या क्या शिफ्ट हुआ है, क्या क्या ट्रांसिशन हुआ है, और उसका इम्पैक्ट एक पर्सन पर, इंडिविजुअल पर, इकोनॉमी पर या सोसाइटी पर क्या है, अब हम इसका ब्यौरा करेंगे. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस. तो ऑथर ने, क्योंकि उसे पता है कि दैट ही इज गोइंग टू राइट समथिंग दैट इज क्वाइट डीप एंड समथिंग दैट विल बी डेफिनेटली लेंदी, नॉट कैनॉट बी कवर्ड इन जस्ट 2 or 3 पैराग्राफ्स, वो नहीं होगा. So he is already stating what is going to be included in this article. Now, the COVID-19 crisis triggered an unprecedented reverse urban to rural migration. Reverse urban to rural migration मतलब वैसे तो rural to urban तक जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, कोविड के दिनों में या कोविड जैसे लॉकडाउन और ये सब लगा तो लोग अर्बन से रूरल अपने घर की तरफ वापस आने लगे. और ये अनप्रेसिडेंट था, मतलब पहले ऐसे नहीं होता था. So government estimates suggest a net reverse migration of 42.13 million during the first lockdown and 26.3 million during the second. These individuals, primarily low-wage, low-skilled, seasonal and short-term migrants, face significant hardships including wage theft, acute food insecurity, lack of access to healthcare, education, discrimination, stigma, and instances of brutality. तो brutality का मतलब होता है cruelty, ये भी होने लगी थी. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा मतलब ये भी उनका नाम, स्टिग्मेटाइज होना मतलब नाम खराब होना, तो ये भी हो रहा था. डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा था और स्टिग्मा यानी अफेक्टिंग अ नेम, तो दैट इज वेयर द नेम इज टेंटेड और बिस्मच्ड और स्पॉइल्ड, तो नाम भी खराब हो रहा था और उनके साथ क्रूल्टी भी हो रही थी.
So the economic strain to their families, many of whom relied on remittances for survival. तो ये इकोनॉमिक स्ट्रेन था. स्ट्रेन का मतलब कोई भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेन भी हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेन भी हो सकता है, और ये इकोनॉमिक स्ट्रेन है. ठीक है, स्ट्रेन मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा वरी या एंग्जाइटी होती है. तो अगर इस स्ट्रेन से हम एक वर्ड और समझ सकते हैं तो इट वॉज अ स्ट्रीनियस जॉब. ठीक है, इट वॉज अ स्ट्रीनियस जॉब का मतलब होता है इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है, ऐसा जॉब है ये. ठीक है, so from strain you can understand the word strenuous. So the second paragraph is giving you what happened 5 years back. ठीक है, so this was the condition and the data regarding migration. ठीक है, तो अगर हम ऑथर की बात समझें तो उससे पहले पैराग्राफ में बता दिया कि देखो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. 5 साल पहले जो लॉकडाउन लगा था वहां पे माइग्रेशन हुआ था, जो कि रिवर्स माइग्रेशन था, पहले कभी नहीं हुआ है. अर्बन एरिया से रूरल एरिया की तरफ जाने लगी लोग, और इतने इतने लोग जा रहे थे फर्स्ट लॉकडाउन सेकंड लॉकडाउन. तो नाउ ही इज गिविंग द डेटा इन द सेकंड पैराग्राफ, because in the first established that now we are going to discuss this, right? So 5 years on, the majority of these migrants have likely had to return to urban areas, bringing back the pre-COVID scenario. The rural economy was unable to absorb the returning workforce with the MG Narega, मनरेगा जैसे होता है, provided only partial and temporary relief. ठीक है, तो अगर ये रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, मनरेगा चलेगा तो उनको रूरल एम्प्लॉयमेंट जो लेने आएंगे तो उनको पार्शियल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, फुल और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बात उन्होंने नहीं की है. Now, when these people returned after 5 years, they are like gradually coming back to the urban areas. So, urban areas are again in that प्री कोविड सिनेरियो जहां पे लोग बहुत ज्यादा थे, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो उसके साथ साथ उसके प्रॉब्लम्स भी, अर्बन एरियाज के प्रॉब्लम्स भी वही हो जाएंगे. ठीक है, now lack of economic opportunities, rural distress, low rural wages and urban aspirations continue to drive migration back to cities, right? So this becomes the main point. So they are coming back to cities, और बैक टू सिटीज होगा तो इसमें से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स वापस से आ जाएंगी. प्रॉब्लम्स विल रिटर्न ऑल्सो, राइट? द सेम प्रॉब्लम्स विल अराइज. क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. अब इसके साथ बैक टू सिटीज के साथ हम प्लस कर लेंगे क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इन 5 सालों में क्लाइमेट चेंज भी हुआ है जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. Now, a study conducted by the International Institute of Migration and Development for the Food and Agriculture Organization and IOM in Odisha found that climate change is significantly impacting agriculture and allied activities, contributing to distress and aspirational outmigration. Right? So, this is climate change is again one of the factors. तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस का कोई रेलेवेंस है नहीं, उसे सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दे दिया और शॉर्ट फॉर्म दे दिया, तो आपको जीके के हिसाब से लिख सकते हो आराम से. ठीक है, तो what are these sentences actually giving you? Just this, that the problems return. Climate change is again another important factor causing distress to the people or the rising population of the urban areas. Migration to urban centers is expected to remain strong. अभी भी रहेगा, आगे भी चलेगा. With projections indicating that 40% of India's population will reside in cities by 2026. Indian government continues to encourage migration to urban centers through initiatives such as Smart Cities Mission. Right now, if the Indian government is encouraging, it is going to remain strong. अब देखो ऑथर का पॉइंट ये होगा कि पॉपुलेशन या माइग्रेशन टू अर्बन सिटीज तो स्ट्रांग रहने वाली है. क्यों? क्योंकि ऐसे कई सारे रीजंस है, उसके रीजनिंग दे रहा है. ठीक है, इट एम्स टू डेवलप 100 cities into modern urban hubs and relies heavily on migrant labor. ठीक है, now the pandemic caused severe disruptions to international migrants as well. और सिर्फ लोकल या स्टेट टू स्टेट माइग्रेंट्स की बात नहीं है, अब उसने अपना एरिया शिफ्ट किया तो सिर्फ स्टेट के माइग्रेंट्स नहीं है, रूरल से अर्बन या अर्बन से रूरल की बात नहीं है, अब इंटरनेशनल की बात चलिए. राइट, तो हियर वी हैव द इंटरनेशनल वन. Now, Indian immigrants encountered severe hardships, including job losses, wage cuts, overcrowded living conditions, and heightened health risks due to inadequate sanitation and protective measures.
Despite job losses and wage cuts, remittances to India remained resilient. Resilient का मतलब होता है कमिंग बैक और टू बाउंस बैक, उतना तो चलता ही रहा। जितना पैसा इंडिया के पास आ रहा था उतना आता रहा, सस्टेनिंग द हाउस होल्ड्स रिलायंट ऑन देम। ठीक है, तो जो बाहर काम कर रहे थे वो जैसे तैसे करके पैसा तो भेज ही रहे थे, तो यहाँ के लोगों का काम चलने लगा जो फैमिली उन पे डिपेंडेंट थी। Pandemic has reinforced the notion that remittances will remain a crucial driver of development in India, especially the immigrant sending states. ठीक है, अब जहां पे लोग गए हैं बाहर काम कर रहे हैं और वो जहां से वापस पैसा भेजते हैं, तो उस पे डिपेंड रहती है इंडिया की फैमिलीज उनकी। ठीक है, सो दीज रेमिटेंसेस विल बी क्वाइट important to India, right? So he is coming up with another point about the international immigrants or migrants. पोस्ट पैंडेमिक इंटरनेशनल माइग्रेशन पैटर्न्स हैव अंडरगॉन नोटेबल शिफ्ट्स। बात तो शिफ्ट्स की चल रही थी, ठीक है, तो प्री पैंडेमिक भी वो था, अच्छा काम आ रहा था पैसा जो वहां से आया। अब पोस्ट पैंडेमिक में कई सारी शिफ्ट्स होने लगी। क्या होता है, while migration to Gulf Cooperation Council countries remains robust, an increasing number of Indians are exploring new destinations। ठीक है, तो यहाँ पे उनके डेस्टिनेशंस की बात जा रही है, तो गल्फ कंट्रीज में तो जा ही रहे हैं लोग, लेकिन न्यू कंट्रीज को भी देख रहे हैं। अब न्यू कंट्रीज में कौन कौन सी आएंगी, लेट अस सी। यूरोप इज इमर्जिंग एज एन इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर हाईली स्किल्ड इंडियंस। ठीक है, गल्फ में लो स्किल्ड इंडियंस भी चल जाएंगे, लेकिन यूरोप में हाईली स्किल्ड इंडियंस चाहिए। Indians were the top beneficiaries of the European Union Blue Card program in 2023, a work visa for highly qualified professionals. Now, while migration to Europe is not a new phenomena, Indians are increasingly moving to non-traditional destinations within Europe. तो वैसे तो आप लंदन, जर्मनी, फ्रांस या उधर जाएंगे, आयरलैंड या यूके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि नॉन ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस पे अब लोग जाने लगे। ठीक है, क्योंकि अब ये शिफ्ट की ही बात कर रहे हैं ना, तो जो शिफ्ट या यहाँ पे जो ब्लू कार्ड प्रोग्राम बनाया था 2023 में वो तो बढ़िया था, बट नाउ अंडरस्टैंडिंग द पीपल व्हाट दे आर डूइंग और वेयर दे आर गोइंग, तो दे आर गोइंग टू न्यू डेस्टिनेशंस within Europe such as Malta, Georgia and other Eastern European nations. Now, Indians are also migrating in greater numbers to destinations in Africa driven by factors like the latter's economic growth, expanding market। अब अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ये भी अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में हिस्सा लेने लगे हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक एक मार्केट, नया मार्केट बनता जा रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे लोग जाएंगे भी, वहां पे भी एक्सपेंशन होगी तो काम करने भी जाएंगे लोग। तो नाउ दैट इज बिकमिंग अनदर न्यू डेस्टिनेशन फॉर दीज पीपल, right? So, however, challenges persist as shown by the recent ordeal of 47 workers from Jharkhand stranded in Cameroon. ठीक है, तो challenges तो रहेंगी सही, destinations new हो गई हैं, challenges फिर भी रहेंगी, this is what he is saying। ठीक है, तो in this case it was new countries, destinations new, but challenges remain। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में उसने क्या कर दिया था, न्यू कंट्रीज है तो उसने ईस्टर्न यूरोप की बात की, ठीक है, फिर उसने अफ्रीका की बात की, और फिर बोला कि हाँ ठीक है, न्यू डेस्टिनेशन से पर चैलेंजेस तो फिर भी है। So the pandemic also underscored the significance of Indian healthcare workers who remain in high demand worldwide। ये बात भी है। अब आ जाता है सेक्टर के हिसाब से सिग्निफिकेंस, अब हम उसको समझेंगे। तो हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत पूरी दुनिया में है। एडिशनली स्टूडेंट माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया हैज सर्ज्ड पोस्ट पैंडेमिक। अभी एक और बात लेके आ रहे हैं, तो एक तो इन्होंने सेक्टर बेस्ड कर लिया हेल्थ केयर का, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में ये लोग जाने लगे, ठीक है। नाउ तो सेक्टर बेस्ड, फाइन, डन। देन कम्स द थर्ड वन, तो फर्स्ट वाज द रूरल immigrants, and then it was the international immigrants, and now it is the student migration that they are talking about। So this is the third segment। इसमें क्या शिफ्ट आया देखते हैं। So student migration from India has surged post pandemic। Surge का मतलब increase हो जाना। Kerala Migration Survey 2023 indicates that number of student immigrants from Kerala nearly doubled from 1.29 lakh to in 2018 to 2.5 lakh in 2023। Reserve Bank of India RBI data shows that outward remittances for studies abroad peaked in 21
reflecting a sharp increase in spending of the international और spending on international education. मतलब international education पे हमारे पास पैसा ज्यादा जा रहा है, हम वहां पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं. So we have also witnessed the student crisis during the Russia-Ukraine war. ठीक है, अब ये भी क्योंकि इससे पहले भी कहा था ना कि प्रॉब्लम्स तो हर कहीं पे है. तो जब स्टूडेंट माइग्रेशन की बात की, आरबीआई ने भी कहा कि हाँ हम बहुत ज्यादा पैसा बाहर की यूनिवर्सिटीज में लगा रहे हैं. और फिर उन्होंने क्राइसिस की भी बात कर ली कि ऑथर ने that student crisis during the Russia-Ukraine war is there. So he's again coming up student migration and then mentioning that yes, there was a crisis too. Now, as migration patterns continue to evolve, improving migration governance is essential. Now comes the author's point. तो उसने अब देखो पूरा पैसेज का स्ट्रक्चर कैसे रहा. उसने कहा देखो भाई मैं माइग्रेशन और उसके शिफ्ट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि 5 साल हो चुके हैं कोविड को, लॉकडाउन को. ठीक है, अब उसमें उसने रूरल माइग्रेशन की बात करी कि रूरल टू अर्बन होता है पहले, फिर लॉकडाउन के टाइम पे अर्बन टू रूरल हो गया, लेकिन अभी वापस रूरल टू अर्बन होता जा रहा है. फिर उसकी चैलेंजेस, उसके प्रॉब्लम्स. देन ही मेंशन द इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड देन द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट. Then he mentioned the student migration and then the problem related to it, right? So now he is saying, I'm mentioning all this very in a structured manner. He says, now see, if it is facing all these problems, then what is essential now? तो अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है हर किसी सेगमेंट में, तो फिर जरूरी क्या है? माइग्रेशन पैटर्न्स कंटिन्यू टू इवॉल्व, इंप्रूविंग माइग्रेशन गवर्नेंस इज एसेंशियल. ये जरूरी है इंप्रूव होना, क्योंकि प्रॉब्लम है हर कहीं पे. So government policies and social security initiatives require systematic evaluation, evaluate करो, reassess करो, and reform करो to ensure that they effectively serve the needs to create serve the needs of migrants. So migrants को जो प्रॉब्लम हो रही है तो उनकी नीड्स को एड्रेस करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें रीइवैल्यूएशन करना पड़ेगा, रीअसेसमेंट करना पड़ेगा और रिफॉर्म करना पड़ेगा फिर से. So the government launched the e-Shram portal in 2021 to create a national database of unorganized workers. Now these are the steps. Okay, fine. So his point was that now essential reform to be taken, because before that he has come up with all the problems. Now, if this reform is to be taken, then he is first mentioning the step taken by the government. उसने क्या किया है अभी गवर्नमेंट ने. ठीक है, तो पहले वो बताएंगे कि क्या किया है, उसके बाद ही वो बता सकते हैं कि क्या करना भी बाकी है या क्या करना चाहिए, राइट? तो आप ऐसे सेड अर्लियर कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचते हैं ऑथर्स भी, लिखने वाले भी. तो हम जब पढ़ते हैं, even we need to understand that structure that they have been following. So if the government has done this to provide social security benefits, including insurance and access to subsidized food grains. However, registrations on the portal have plateaued due to a lack of awareness and digital access barriers. ये देखो वापस इसका प्रॉब्लम आ गया. So the One Nation, One Ration card scheme introduced in 2018 was designed to facilitate access to public distribution system. Right? ये बनाया गया था कि पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सबको मिल जाए, तो फेयर प्राइस शॉप में यानी राशन की दुकान, thus improving food security among internal migrants. तो ये अगर वन नेशन वन राशन कार्ड होता, सबके पास होता, तो इसीलिए बनाया था. क्यों? क्योंकि अगर आप एक यूपी के रहने वाले वर्कर हैं और आप केरला में जाके काम करते हैं, तो आपका राशन कार्ड वहां पे भी काम आएगा और आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आराम से मिल जाएगा. जैसे आधार कार्ड पूरे इंडिया में चलता है, वैसे ही ये राशन कार्ड भी चलता, राइट? तो इन्होंने 2018 में ये बनाया था. Now, however, a large segment of migrants continues to fall outside the ambit of the scheme. Again, however, करके वो प्रॉब्लम बता रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है. तो उन्होंने एक स्टेप तो बढ़िया सा लिया है, दिस वाज अ स्टेप टेकन, राइट? बट अगेन इट फेस्ड अ प्रॉब्लम. देयर वाज अ प्रॉब्लम हियर, राइट? नाउ वी नीड टू इवैल्यूएट एंड इम्प्रूव. वापस से वो बता रहे हैं कि इवैल्यूएट इम्प्रूव तो करना ही पड़ेगा ना, यही प्रोग्राम जो है. तो प्रोग्राम अच्छा है, सही तरीके से अगर नहीं हुआ है, तो you need to now improve, right? Evaluation. So India needs an improved migration regime. देखो वापस से उसने कहा, as I said earlier, वो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रक्चर्ड मैनर में वो अपनी बात रख रहा है. तो बात क्या हो गई, सेंट्रल आइडिया वही हो गया ना कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, शिफ्ट हुआ है, ट्रांसिशन हुआ है, और
उसमें थोड़ी सी चैलेंजेस भी हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो अब इंडिया को रीवैल्यूएट या रिफॉर्म करना पड़ेगा ये सारी स्टेप्स जो उसने लिए या कुछ नया करना पड़ेगा. So then changing or bringing up the reform becomes an essential point, right? So India needs an improved migration regime backed by reliable data. The delay of the 21 census and the lack of updated data on migration and demography remains a challenge, making it difficult to assess. Again, it is problem. It is giving you the problem कि आगे क्या है. तो उसने कह दिया क्योंकि what needs to be done तो कर दिया, लेकिन ये भी बता दिया कि ठीक है ये सब करने में भी प्रॉब्लम आएगा. क्यों? क्योंकि डेटा इनएडिक्वेट है. Periodic labor force survey recorded a migration rate of 28.9%, a marginal increase from 28.5% reported in the NSS 64th round. However, this data collected during COVID-19 crisis when migration was in a state of flux. ठीक है, तो डेटा कब कलेक्ट किया गया था? तभी इसने कहा था डेटा एक प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि सही तरीके से सेंसस नहीं हुआ था. क्यों? क्योंकि तब माइग्रेशन चल रहा था. फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो. It does not accurately represent the long-term shifts in migration pattern. So this is again something that is missing, inadequate. तो अगर inadequate चीजें हैं तो प्रॉब्लम सही नहीं होगा. ठीक है, हम पॉलिसीज को रिफॉर्म किस तरीके से करेंगे अगर डेटा सही नहीं है तो. सो द ऑथर इज मेंशनिंग द प्रॉब्लम्स द that this is the problems that they are facing. Now, similarly, the absence of a comprehensive database of Indian immigrants remains a significant gap. ठीक है, अगेन अगर उसे इंडिया के फार्मर्स की बात की तो फिर इमिग्रेंट्स की भी बात की कि ये भी एक डेटा है जो कि नहीं है इनके पास. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स काउंट ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स वर्ल्ड वाइड इज लाइकली एन अंडर एस्टिमेट. As India's migration patterns diversify beyond traditional destinations, a more robust migrant support network beyond conventional destinations is imperative. Again, imperative means something that is needed badly. ये तो होना ही चाहिए. तो रोबस्ट यानी स्ट्रॉन्ग माइग्रेंट सपोर्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल डेस्टिनेशन से वहां से हटके इंडियंस तो कितनी ही दूर चले जाते हैं काम करने के लिए, अलग अलग एरियाज में जा रहे हैं, लेकिन वहां से डेटा बराबर मिल नहीं रहा है. राइट. सो दिस इज अगेन रिक्वायर्ड imperative. Kerala migration surveys conducted every 5 years since 1998 have greatly improved the understanding of migration trends in Kerala. एनेबलिंग बेटर पॉलिसी इंटरवेंशन, तो केरला थोड़ा अच्छा काम कर रही है. उन्होंने ट्रेंड समझे तो आगे पॉलिसीज को भी इंप्लीमेंट करने का उन्होंने सोचा, तो पॉलिसी इंटरवेंशन होने लगी. बढ़िया. द केरला मॉडल ऑफ माइग्रेशन सर्वेज हैज बीन रेप्लिकेटेड इन स्टेट्स लाइक उड़ीसा, गोवा, पंजाब, गुजरात, झारखंड एंड तमिलनाडु. Expanding this model to all states would strengthen migration governance and policy responses. देखो जिस तरीके से ऑथर ने ये कंक्लूजन कहा कि एक एग्जाम्पल दिया कि केरला ने ये काम अच्छे से समझ लिया है, उसने माइग्रेशन ट्रेंड्स समझे और फिर पॉलिसी इंटरवेंशन उसके हिसाब से कर ली, तो बढ़िया रहा. ठीक है, और अब उसकी देखा देखिए बाकी के स्टेट्स भी कर रहे हैं. दिस if this model is applied to all the states, now the author's point, if it is applied to all the states, then definitely this migration governance will be strengthened. तो उसने कह तो उसका पॉइंट है तो सही कि ये माइग्रेशन जो प्रॉब्लम है इसे हटानी है, उसे रीवैल्युएट करना है, स्ट्रेंथन करना है. गवर्नेंस इज एसेंशियल, उसने पहले ही कहा था. ठीक है, सेकेंड या थर्ड पैराग्राफ में भी रिपीट किया था. सो दिस इज व्हाट इज बीइंग जस्टिफाइड हियर अगेन. So we discussed all the main ideas. Tracking migration 5 years after COVID, movement from rural to urban centers is restored. International immigration has diversified. दोनों हो गए, इंटरनेशनल भी रूरल भी. ठीक है, नाउ इंप्रूविंग माइग्रेशन गवर्नेंस इज इसेंशियल. ये रहा, बड़ा सीधा सिंपल उसने कह दिया. ठीक है, अब इसेंशियल है ये तो उसने बोल दिया, और उसके बाद उसने एक सजेशन दे दी कि देखो एग्जाम्पल है केरला का, और अगर केरला का एग्जाम्पल 4 अलग अलग स्टेट्स ने फॉलो तो किया है, राइट, और ये बढ़िया भी रहा है, और अगर ऑल स्टेट्स आर गोइंग टू फॉलो or this model is applied to all the states, then definitely the problem will be catered to. The problem will be addressed. And what was the problem? Right? It was about the migration governance
being essential, right? So you'll be able to now understand even a lengthy article. ठीक है, तो आज मैं और कुछ ज्यादा नहीं लेके आए, मोर टू रीड में बिहाइंड फायर एंड कैश द बर्निंग इशू, ये एक जरूर पढ़ लेना. इंडियन एक्सप्रेस का ही है ये आर्टिकल, बट देन इट इज क्वाइट अ गुड वन. So one lengthy article you've read, so please go in with the flow and read one article more from that page. Right? So that's all for today. And thank you. And stay logical and stay positive always. And as I said earlier, kindly read one small article extra today. Right? Thank you.